Good morning, students of the BSc first year classes. You know that very well about to the different days I was discussed about to the particular papers, the third paper, cell biology, in which we are started to the cell, type of the cell and the different kinds of the organelles which found into the cytoplasm, which make to the boundary of the cell just like to the plasma membrane, and which found or the suspended into the cytoplasm, Golgi body, endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, nucleus, lysosomes, particularly as you mentioned that to the animal cell. Today's topic is to the most important organelles, which is very essential, and in the other words we can say that about to this is the conductor regulator of the cells, because these are regulated to all the activities of the cell which are required, demands one to that, and doing to the numbers of the processes on the basis of to the nucleus. So that today's topic is the nucleus. Nucleus is the central part of the cell, which are organizers, which are regulator, conductor. So that in this topic we just know that what is the structure of the nucleus and to the function of the nucleus as well. So in the structure, the nucleus which are composed of there are the four parts which are mentioned that into the go ahead to the nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin fibers and the nucleus. But first of all, we are goes now into their historical point of view, historical ones, and who's the persons are the person which are described and given to the term of the nucleus, and what is the main aspect, what is the main aspect of the nucleus which are say that about to the this is the central chief component which form into the metabolic and as well as to the hereditary characters, hereditary functions. So that going to the topic of the nucleus. Nucleus is the central. Nucleus is called to the heart of the cell, because these are found into the central part, which take to the control to the metabolic and to the hereditary mechanism. So in the Latin word, the meaning of the heart, nux, and this is the heart of cell, which is called to the heart of the cell, because these are the regulated to the all the activities of the cell, so that is called to the heart of the cell. This is the centrally located, which are suspended in the cytoplasm. तो आज के चैप्टर में हम जो है बीएससी फर्स्ट ईयर क्लासेस से जो रिलेटेड जो चैप्टर चल रहे हैं ऑर्गेनल्स, उसके अंतर्गत एक नए ऑर्गेनल के साथ में फिर से उपस्थित हुए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण और इसेंशियल ऑर्गेनल्स है आज का, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस जो कि हम कंडक्टर होता है, रेगुलेटर होता है, नियंत्रक होता है, जो कि पूरी सारी एक्टिविटीज जो सेल के अंतर्गत जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि हेरिडिटरी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण में सारी प्रक्रियाओं को करता है। तो इसलिए तो जो मैंने कहा लैटिन वर्ड में इसको नक्स बोलते हैं, और ये चूंकि सेंट्रल पार्ट होता है, सारी प्रक्रियाओं को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ द सेल कहा जाता है। तो देखते हैं, द न्यूक्लियस इज द सेंट्रली लोकेटेड एंड स्फेरिकल सेलुलर
which controls the different metabolic as well as the hereditary activities of the cell. The first of all, the nucleus is the centrally located. That the nucleus is the centrally located. That occupy on the central part in the cytoplasm, which can say that it is suspended in the cytoplasm and a spherical. This is a rounded spherical shape. Look like as into the cellular bodies. This is also formed to by the cell, which controls. This is the controls which regulates, which controls the different metabolic as well as the hereditary activities of the cell. They are the both important. Which activities, as you can say, about to those are the activities which related to the aliveness, which related to the survival of the any kinds of the animals, that is the metabolic as well as hereditary. यहाँ पे हमने कहा कि पहले सेंटेंस में कि ये कंट्रोल करता है विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. मेटाबॉलिज्म आपको पता है, सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शंस विच आर फाउंड फॉर द फूड स्टफ्स इन द बॉडी. बॉडी में जो फूड स्टफ्स के लिए जितने भी प्रकार के टोटल अमाउंट में जो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं उनको कहा जाता है, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है. कैटाबॉलिज्म में जो है डिग्रेडेशन होता है, जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और उसी एनर्जी के प्रोडक्शन से दूसरा जो इसका फॉर्म है, दूसरा फेज है एनाबॉलिज्म, जिसमें सिंथेसिस होता है. सिंथेसिस तभी होगा जबकि एनर्जी खर्च होगी, और ये एनर्जी जो कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है, दैट इज द एनर्जी विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टू द प्रोसेस ऑफ द कैटाबॉलिज्म, एंड दैट इज यूज इन टू द अनदर वन दैट इज द कॉल्ड टू द एनाबॉलिज्म. एंड एनाबॉलिज्म इज अ सिंथेटिक प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ द न्यू सबस्टेंसेस which are required for the body, that is the time. So here to the metabolic, that is the lot of the metabolic functioning. The metabolism is the chemical reaction, so that each of the cells which are applied, which are doing to the lot of the metabolic functioning, metabolic machinery, and this is the chemical reactions, and the chemical reactions which are only which are found when to the according to the environment, that is the human beings or the any kinds of the animals which have to the steady state or the equilibrium level, because the which means that to the in the range of the temperature, in the ranges of the temperature to the 20 to 35 degrees centigrade, that is the indicating to the enzymatic action, so that to the all the metabolism, because the why are to the controls to the metabolism and as well as hereditary activities. All the what is the hereditary activities? The heredity and hereditary process, all the hereditary, all the inheritance of all the characters from the parents to the offspring, from one generation to another, that is called to the heredity. तो हेरिडिटी कैरेक्टर को और मेटाबॉलिक कैरेक्टर को, सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. अब आपको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल करता होगा पूरी मेटाबॉलिज्म को, पूरे हेरिडिटरी प्रोसेस को. तो हम इसके पहले कंपोजिशन पे चलते हैं, तब हमें पता चलेगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं. विच ऑफ द पार्ट्स, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेक टू द न्यूक्लियस. तो the nuclei were first discovered and named by the Robert Brown in the 1833. रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज 1833 ईस्वी में प्लांट सेल में की, लेकिन बाद में चल के ये एज अ रिकॉग्नाइज्ड फीचर, कांस्टेंट फीचर के रूप में विकसित हो गया, जो कि हर प्रकार के, सभी प्रकार के एनिमल्स और प्लांट सेल में पाया जाता हो.
तो ये सभी प्रकार के प्लांट और एनिमल सेल में एक कांस्टेंट, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक एसेंशियल चीफ ऑर्गेनल्स के रूप में ये विकसित हुआ, ये प्रपोज्ड हुआ या डिस्कवर्ड हुआ, जिसको 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की। तो मैंने जैसा बताया कि ये मेटाबॉलिक और हेरिडिटरी दोनों फंक्शनिंग में करता है। तो हम इसके ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा देख लेते हैं। दैट द न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nucleoplasm, chromatin fibers and the nucleolus. There are the four parts which are constitutes together, and that is to make a particular type of the nucleus. The nuclear only seen into the developmental process, which can say that to the during to the cell division only to the interphagic cell which are have to the nucleus, which have to the nucleus, which that to the scene for that to the what is the position and location, what is the constitution and organization as well. So मतलब कहने का था कि ये चार प्रकार के पार्ट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं न्यूक्लियस को बनाने में। और ये सेल डिवीजन के टाइम में हम केवल जो हमारा इंटरफेज होता है, जो हमारा रेस्ट फेज होता है, उस समय हम केवल न्यूक्लियस को देख सकते हैं, क्योंकि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो प्रोसीड करता रहता है, वो फर्दर एंड फर्दर उसमें चेंजेस आते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, क्योंकि उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती रहती है। इसलिए जब रेस्ट फेज होता है उसी समय हम इसको देख सकते हैं कि क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या इसका केमिकल कंपोजिशन है और किन किन जो है फीचर से बना है, which type of the features which are organized as the particular nucleus, and that's to the what kinds of the functioning which are done by the nucleus. So that there are the other particular features of the nuclear particular organization, that is the nuclear membrane, that is the upper and the lower nuclear pore in between to the nuclear membranes, and which are have to the acidophils fluids materials in the nucleus, and along in the suspended to the nucleus the chromatin fiber is also found along with the nucleolus. तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो है जो क्रोमेटिन फाइबर्स होता है वो क्रोमोसोम कहलाता है। वो उसको जो है ये चूंकि क्या है क्रोमेटिन फाइबर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फाउंड होता है ये न्यूक्लियस में ड्यूरिंग टू द सेल डिवीजन की जब प्रक्रिया होती है तो इसमें बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं, और इन बदलाव के साथ में ये इसका नाम भी बदलता जाता है, क्योंकि इसका जब ऑर्गेनाइजेशन बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता है, और जब नाम बदलता है तो उसके सारे जो भी फीचर्स होते हैं उसमें भी बदलाव होता है, उससे केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आता है। तो इस प्रकार से हम जब इंटरफेस से लेके पूरे सेल डिवीजन की प्रक्रिया में देखते हैं तो अलग अलग नाम और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन और अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि इंटरफेजिक जो सेल्स होते हैं इन द टाइम ऑफ द ड्यूरिंग टू द इंटरफेजिक सेल दैट इज कॉल्ड टू द क्रोमेटिन फाइबर, एंड आफ्टर दैट गोइंग इनटू द सेल डिवीजन दैट इज हैव टू द देयर विड्थ एंड व्हिच कॉल्ड टू द chromosomes, and the chromosome is made up of the RNA, DNA and to the proteins, so that and after that is going into the degradation, after going into the split of the chromosome, because they is the for the purpose of to the form to the 2 daughter nuclei into the mitosis and 4 daughter nuclei into the meiosis processes, and that is the chromosomes will go now to their opposite poles, and that is formed to the nuclear membrane, and after that going into the differentiation and divisions of the cytoplasm and the cell, so that 2 daughter nuclei which form। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेल डिवीजन के टाइम में ही ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है, और पर्टिकुलरली इंटरफेज की प्रक्रिया में। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये इंटरफेज का है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कि ड्यूरिंग टू द सेल डिवीजन बनती हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म भरा है तो ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेसेस पाए जाते हैं ये एसिडिक फ्लूइड्स होते हैं, और इनके बीच में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, क्रोमेटिन फाइबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रोमेटिन फाइबर जैसा मैंने पहले बताया कि अलग अलग फेज में अलग अलग नाम से और अलग अलग कंपोजिशन से जानी जाती हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है उस पे जीन्स होते हैं, और ये जो जीन होते हैं ये
अलग अलग जो जीन्स होते हैं वही इस मेटाबॉलिक और हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. These kinds of the genes which are responsible for the hereditary and to the metabolic functioning as well, and this is called to the nucleic acid, because the DNA and the RNA is the nucleic acid of the all the organisms, particularly the DNA, and on the DNA the lot of the genes which are found, and that genes which are participating into the different kinds of the functioning, different types of the works, as you can say that is into the differentiation, mutation, evolution, and genetic recombination, that is the hereditary process, metabolism. तो बहुत सारी प्रक्रियाओं में ये जो जीन्स होते हैं जो डीएनए पे पाए जाते हैं या फिर जो हम कह रहे हैं क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, और इस क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग जीन्स होते हैं. तो बहुत मिलियंस ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ द genes which are found into the chromosomes, and each of genes which are specified for the particular functioning, which means that to the each of the genes which directed by the each one work or the particular work, so that एक जीन्स जो होता है एक विशेष फंक्शनिंग के लिए, एक विशेष कार्य के लिए, एक करेक्टर के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक अपीयरेंसेस के लिए जिम्मेदार होता है. तो आप ये कह सकते हैं कि जो जीन्स होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं हमारे फीचर्स के लिए, हमारे फंक्शनिंग के लिए, हमारे फिजियोलॉजी के लिए, हमारे सिंथेसिस के लिए, हमारे जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. तो all the procedures, all the functions, all the mechanism which are done by to the each type of the cells which are found at to the chromosome, and this is called to the nucleic acid, DNA and the RNA, which are specified, which are occupied into the different kinds of the entities, that is animal, plant and the microbes. So the metabolism, तो जो भी मेटाबॉलिज्म है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, सिंथेसिस के लिए, जितनी भी चीज़ों के लिए आवश्यकता होगी वो जीन के माध्यम से ही होगी, जीन के द्वारा ही होगी. जीन क्या, अब जीन जैसे बार बार बोला जा रहा है, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस होते हैं डीएनए में, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, विच फॉर्म टू द which are have also to the information. It means that the DNA which have to information for that to the synthesis of the proteins, and that is these nitrogenous bases form to the codons, and 64 codons which make to the different kinds of the proteins, and these proteins which help into the different procedures for the survival. तो ये तो मेटाबॉलिज्म हुआ कि केमिकल रिएक्शन में वो जीन के माध्यम से काम करेंगे, लेकिन हेरिडिटरी क्या है? आपको हम अलग अलग प्रोसेस बताते हैं. जैसे कि यहाँ पर हेरिडिटरी तो है ही है, उसके अलावा उसके साथ साथ में यहाँ पे देखें कि हेरिडिटरी के अलावा क्या हो सकता है. जैसे हेरिडिटरी के अलावा मैंने बोला कि क्या है, म्यूटेशन है, म्यूटेशन, वेरिएशन भी हम लिखेंगे, वेरिएशन, फिर हम एवोल्यूशन लिखेंगे, एवोल्यूशन. ये सब बेस हैं. तो ये कुछ ये सब जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो कि हम इंडिकेट कर रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो हेरिडिटी है, जो ये इंफॉर्मेशंस होते हैं, जो संकेतक होते हैं, जो फीचर्स होते हैं विभिन्न प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स में, वो इन जीन्स के माध्यम से पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस का भाग होते हैं, और एज ए न्यूक्लियस ट्रीट होता है. तो इसीलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है विच पार्टिसिपेट, विच कंट्रोल टू द हेरिडिटरी एज वेल एज टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो सबसे पहले समझ लेते हैं हेरिडिटी क्या है. वो इंफॉर्मेशन, वो कैरेक्टर्स, वो सूचनाएं जो कि हमारे पेरेंट्स से
अगली पीढ़ी तक जाते हैं, अगले प्रोजेनी में जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते हैं तो उसको जो है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं, और जिस प्रोसेस के द्वारा होते हैं उसको हेरिडिटी या इनहेरिटेंस प्रोसेस बोलते हैं, वंशानुगत बोलते हैं। तो वंशानुगत से एक पीढ़ी से दूसरे पहुंचते हैं। तो जो बोथ male and female which are participate in the process up to the fertilization, and the both of the pronucleus which are fused together came from to the along with the sperm and the ova, and that's to the constituted to the zygote, and which are going into the further development, and further and further which are changes which are occurs form to the marula, gastrula, marula, blastula, gastrula, and to the organs, and then which are converted into the particular body, so that to the all the information which are had to the nuclei up to the sperm and to the nuclei of the ova, which means that to the both of the have all the information for that to the their fate for the फ्यूचर के लिए जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, वो उनके माता पिता के माध्यम से, जो उनके स्पर्म और ओवा के माध्यम से उसका फ्यूजन होता है, वो पहुंचते हैं, और वो सारे जो है इंफॉर्मेशन, सारी फीचर्स ट्रांसमिट हो जाती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। उसी को बोला जाता है हेरिडिटरी एक्टिविटीज़, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, इनहेरिटेंस प्रोसेस। लेकिन अब कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी हैं जो कि जीन के ही द्वारा, डीएनए के ही द्वारा या न्यूक्लियस के ही द्वारा होंगे, जो कि देखें, एक प्रोसेस हमने बता रहे हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन थियरी विच आर proposed by to the Hugo de Vries in the evolution process. Mutation is the process in which suddenly the modifications which are occurring in the genome of to the organism, genome of the animals, genome of the plant, that is called to the mutation. म्यूटेशन अचानक होने वाली प्रक्रिया है जो कि किसी भी एनिमल्स के, किसी भी प्लांट के, या फिर पर्टिकुलर हम कह सकते हैं जीनोम, जो कि जीनोम होता है ऑर्गेनिज्म का, उसमें पाया जाता है, और वो मॉडिफाइड कर देता है उसके जीनोम को। तो उसके जब जीनोम या फिर जो जीन होता है, जो डीएनए होता है, वो मॉडिफाइड होगा तो उसके कैरेक्टर, उसके अपीयरेंसेस और या उसका फीचर बदल जाता है, उसका मैकेनिज्म बदल जाता है, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। जब हम इन डिटेल में जाते हैं तो इसको बोला जाता है कि दिस इज द सडनली इनहेरिटेड एंड डिस्क्रीट process in which to the changes which are occur in the genotype of the animals, that is called to the mutation. तो म्यूटेशन जो है सडनली, अचानक और इनहेरिटेड और डिस्क्रीट प्रोसेस होता है, जिसके माध्यम से जीन में बदलाव होगा, और जीन में बदलाव होगा तो जीन के बदलाव से सारे फीचर्स में बदलाव होगा, मैकेनिज्म में बदलाव होगा, और वो बदले हुए बदलाव के साथ में अपीयर्ड होता है। तो वो जीन के माध्यम से होता है, जो जीन आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब म्यूटेशन के आधार पे वेरिएशंस भी होंगी। तो वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं हिंदी में बोला जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मॉडिफिकेशंस और द चेंजेस व्हिच आर अकरिंग टू द जीनोम, दैट इज द lot of the variations which are found into the all the animals, all the organism, because the if the genes which are going into the modification, that is the organization, appearances, characters, procedures is also changed, so that to the lot of the variations which are occurring to the appearances of the animals as well on the behalf of the mutation, and if the variations which are occur, that is indicating to the evolution. Evolution is the time taking process, is the gradual process in which to the changes and the modification occurs due to the presence of to the lot of the procedures are the, particularly we can say that through the mutation which are proposed by the Hugo de Vries, and change the genome and the changes of the genome which are the animals, particularly into the for the zoology, that is the which different from their ancestor. तो इस प्रोसीजर में मतलब variations is the raw material for the evolution.
जो वेरिएशंस होती हैं, ये जो म्यूटेशंस होती है, वो रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं एवोल्यूशन प्रोसेस में। एवोल्यूशन क्या है? एक लंबा प्रक्रिया है और जिसके अंतर्गत इन सारे प्रोसीजर के माध्यम से ही जो है उसको देखते हैं। तो हमने ये प्रोसेस बताया जो कि जो जीन से होता है, जो हमारे जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स है, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो यहाँ पे मेटाबॉलिक और हेरिडिटरी एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। अब हम चलते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन और कंपोजिशन की तरफ, जहाँ की 4 भाग हैं, 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पे देखते हैं देयर आर द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर ऑर्गेनाइजेशन विच आर 4 पार्ट्स: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर एंड न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवलप भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा, इसको आप मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कैरियोथिका भी बोलते हैं, कैरियोथिका भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर इनवलप भी बोलते हैं, इनवलप भी बोलते हैं इसको। मतलब क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसलिए चूंकि किसका है? न्यूक्लियस का है, इसलिए इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आर द मेम्ब्रेन विच आर फाउंड आर द सराउंडेड आर लिमिटेड of the nucleus, inhabited to the nucleus with the fluid-like substances which acidophilic in nature, which called to the matrix is called to the nucleoplasm. और न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म ही बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 होते हैं, अपर आउटर एंड इनर होता है। आउटर जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रीजनरेट करता है, जहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द विच आर rough because these are the originated to the endoplasmic reticulum and have to the a lot of the ribosomes, so that, and the inner parts which are the guarded, and in between to the nuclear membrane, that is the perforation which are occurs for that to the exchange of the material from to the nucleoplasm to the cytoplasm, or the cytoplasm to the nucleoplasm, so that to the this is the called to the न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियोपोर। तो ये न्यूक्लियर पोर है या न्यूक्लियोपोर कहा जाता है, जिसके माध्यम से एक्सचेंज की प्रक्रिया होगी, जितने भी मटेरियल्स न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म होंगे। ये तो था। अब हम चलते हैं इस फ्लूइड की तरफ, जो ग्राउंड फ्लूइड्स है, जो हमारा मैट्रिक्स है, एसिडोफिलिक इन नेचर होता है यहाँ पे, क्योंकि क्या एसिडोफिल्स का बोलते हैं जब पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव सब्सटेंसेस ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि क्या है, यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन और अलॉन्ग विद द वाटर प्रेजेंट होता है। तो हम कहते हैं कि द स्पेसेस बिटवीन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चूंकि न्यूक्लियोलस एक बॉडी के रूप में यहाँ पर उपस्थित होता है, इसलिए इसके और इसके बीच में जितने भी स्पेस होते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म बोला जाता है। तो ये क्या है? फ्लूइड है, एक मैट्रिक्स है जिसमें ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और यहाँ पे पाया जाता है। इनके बीच में देखिए क्रोमेटिन फाइबर्स एंड द न्यूक्लियोलस इज द अनदर पार्ट्स विच आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, एंड क्रोमेटिन फाइबर्स इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच लुक लाइक एज द कंडेंस इन फॉर्म, एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द इंटरफेजिक न्यूक्लियस। इंटरफेजिक न्यूक्लियस है, इंटरफेजिक न्यूक्लियस। जैसा मैंने बताया कि ये इंटरफेज के न्यूक्लियस में ही हम इसको जो है देख सकते हैं, क्योंकि आगे सेल डिवीजन में वो लगातार चेंजेस में आएगा, चेंजेस में जा रहा होता है, इसलिए उसको हम जो है डेजिग्नेट नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म में होता है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर उस समय कंडेंस फॉर्म में होता है, बहुत ही आपस में उलझे रहते हैं और जो है इसलिए उनको क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स जो होता है, मैंने कहा आरएनए डीएनए और प्रोटीन को करते हैं। ड्यूरिंग टू द सेल डिवीजन ये थिकनेस इसकी बढ़ती है और इसको बोला जाता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम पे मैंने अभी जो कहा कि ये जीन्स पाए जाते हैं और जीन्स जो है हर एक्टिविटी के लिए, हर कैरेक्टर के लिए, हर फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये देखें तो क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंशिएट किए गए हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टेनिंग प्रोसेस, that is the stain when are the during to the staining process when of the chromosome which have to the dark
that is called to the heterochromatin, and if which are have to the likely which are can say that to the which are seen into the lightly, that is called to the euchromatin. So that euchromatin is more active than to the heterochromatin, because these are the where are the genes of the present into the euchromatin is more active and participate into the metabolism and to the hereditary process. तो यहाँ पे दो प्रोसेस पाए जाते हैं, दो टाइप्स पाए जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स के, और मैंने कहा कि ये ड्यूरिंग टू द सेल डिवीजन बदलता रहता है, क्रोमोसोम फिर क्रोमेटिड्स में जाता है, दोनों खिंचते हैं, सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया आएगी तो हम बताएंगे आपको पूरे तरीके से, और ये यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म बना रहता है। और उसके साथ साथ में ये देखिए न्यूक्लियोलस है जो फॉन्टाना ने इसको नाम दिया है, खोज किया है, और ये राइबोसोमल डीएनए यहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है। यूँ कहें कि जो राइबोसोम की का ओरिजिनेशन होता है, राइबोसोम की जो सिंथेसिस होती है वो इसी न्यूक्लियोलस में होती है, मतलब यूँ कहें कि न्यूक्लियस में होती है, और यहीं से बनने के बाद ये यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म से होता हुआ साइटोप्लाज्म में पहुँच जाता है, जहाँ से बाद में एग्रीगेट होके ये प्रोटीन की सिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस होता है जहाँ पे प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बनने के बाद जो है हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि जो राइबोसोमल प्रोटीन होता है वहीं से बनता है। तो यहाँ पे आपने देखा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इंटरफेज की अवस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो न्यूक्लियस, इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत रेगुलेटर, कंडक्टर या फिर कंट्रोलर बोला जाता है कि सारी एक्टिविटीज़ को, सारे प्रोसीजर्स को, सारे फंक्शंस को क्या करेगा ये, सारे फंक्शंस को क्या करेगा ये जो है कंट्रोल करेगा, इनिशिएट करेगा, कंडक्ट करेगा और कंप्लीट करेगा। तो क्योंकि क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ड्यूरिंग इसको क्रोमोसोम आगे ड्यूरिंग जब सेल डिवीजन कहते हैं, या एक्चुअल में ये न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे डीएनए होता है और डीएनए पे जीन होते हैं या क्रोमोसोम पे जीन होते हैं, और वो जीन जो है कैरेक्टर के लिए, फंक्शन के लिए, अपीयरेंसेस के लिए, कलर के लिए, या आप यूँ कहें हर एक्टिविटीज़, हर थिंग्स के लिए जिम्मेदार होता है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द थिंग्स, ऑल द कैरेक्टर्स, सो दैट, तो इसलिए ही बार बार कहा जाता है कि ये मेटाबॉलिज्म और हेरिडिटी, और उसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे म्यूटेशन, वेरिएशन और एवोल्यूशन प्रोसेस को दिखाया, समझाया, आपको बताया। अब अगले चैप्टर में हम चलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, नए जो है यूनिट के साथ में। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। टुडेज टॉपिक इज क्लोज, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट योर स्टडी टू द न्यूक्लियस, बिकॉज दीज आर द कंट्रोल टू द बोथ ऑफ द प्रोसेस, हेरिडिटी एंड टू द मेटाबॉलिज्म, एंड फॉर द योर सर्वाइवल दैट इज द जीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट बिकॉज दिस इज द पार्टिसिपेटिंग टू द मेटाबॉलिज्म एंड टू द हेरिडिटी। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट, थैंक यू।